सीतारमण जी ने संसद में बजट पेश किया और 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगाने का ऐलान किया। टैक्स पेयर को लेकर जो केंद्र सरकार का एक बड़ा तोहफा देश को मिला है। निर्मला सीतारमण जी ने बजट 2025 के फोकस क्षेत्रों की जो प्राथमिकता बताई है वो खासी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि विकास में तेजी लाना, सुरक्षित समावेशी विकास, निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना, घरेलू खर्च में वृद्धि और भारत के उभरते मध्यम वर्ग की खर्च करने की शक्ति को बढ़ाना है। जाहिर तौर पर इनकम टैक्स का जो ऐलान है वो इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार का फोकस ज्ञान मतलब गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति पर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में कहा कि सरकार का सबके विकास पर जोर है। निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि इनकम टैक्स पर एक अलग से भी बिल आएगा अगले हफ्ते और उसमें भी बहुत कुछ इनकम टैक्स को लेकर एक आगे की दिशा नीति देखने को मिलेगी। जाहिर तौर पर कृषि क्षेत्र को लेकर, किसानों को लेकर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर निर्मला जी ने कई महत्वपूर्ण ऐलान अपने बजट में किए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। As the first engine, Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana, developing agri-districts program. Motivated by the success of the aspirational district program, our government will undertake a Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana in partnership with states. Through the convergence of existing schemes and specialized measures, the program will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity, and below average credit parameters. It aims to 1. Enhance agricultural productivity, 2. Adopt crop diversification and sustainable agricultural practices, 3. Augment post-harvest storage at the panchayat and block level, 4. Improve irrigation facilities, and 5. Facilitate availability of long-term and short-term credit. This program is likely to help 1.7 crore farmers. Building rural prosperity and resilience. A comprehensive multi-sectoral rural prosperity and resilience program will be launched in partnership with the states. This will address underemployment in agriculture through skilling, investment, technology, and invigorating the rural economy. The goal is to generate ample opportunities in rural areas so that migration is an option but not a necessity. The program will focus on rural women, young farmers, rural youth, marginal and small farmers, and landless families. Atmanirbharta in pulses. Our government is implementing the National Mission for Edible Oil Seed for achieving Atmanirbharta in edible oils. Our farmers have the capability to grow enough for our needs and more. 10 years ago, we made concerted efforts and succeeded in achieving near self-sufficiency in pulses. Farmers responded to the need by increasing the cultivated area by 50%, and government arranged for procurement and remunerative prices. Since then, with rising incomes and better affordability, our consumption of pulses has increased significantly. Our government will now launch a 6-year mission for Atmanirbharta in pulses with a special focus on Tur, Urad, and Masoor. Details are in Annexure B. Central agencies such as NAFED and NCCF will be ready to procure these 3 pulses as much as offered during the next 4 years from farmers who register with these agencies and enter into agreements. Comprehensive program for vegetables and fruits. It is encouraging that our people are increasingly becoming aware of their nutritional needs. It is a sign of a society becoming healthier. With rising income levels, the consumption of vegetables, fruits, and Sri Anna is increasing significantly.
A comprehensive program to promote production, efficient supplies, processing, and remunerative prices for farmers will be launched in partnership with the states. Appropriate institutional mechanisms for implementation and participation of farmer producer organizations and cooperatives will be set up. Makhana Board in Bihar. For this, there is a special opportunity for the people of Bihar. A Makhana Board will be established in the state to improve production, processing, value addition, and marketing of makhana. The people engaged in these activities will be organized into FPOs. The board will provide hand-holding and training support to makhana farmers and will also work to ensure they receive the benefits of all relevant government. जाहिर तौर पे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपने इस वित्त बजट के जरिए देश में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने, खास तौर से दलहन के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बने और किसान आर्थिक दृष्टि से मजबूत कैसे हो, इस लिहाज से कई महत्वपूर्ण ऐलान किए हैं। अगर कहा जाए कि अगले 6 साल में मसूर, तुअर जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए एक विशेष मिशन चलाया जाएगा, जिससे भारत दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। इसी प्रकार कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए 5 साल का एक विशेष अभियान सरकार चलाएगी, ताकि देश का कपड़ा बिजनेस मजबूत हो और उसका फायदा किसान को मिले। साथ ही बात अगर करें किसान क्रेडिट कार्ड की, तो कर्ज की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख होगी। बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा, इसका भी ऐलान वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में किया है। जाहिर तौर पे कई महत्वपूर्ण ऐलान देश की कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किया है। लेकिन प्रोफेसर साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा इस मुद्दे को, क्योंकि अगर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की हम बात करते हैं, जिस तरह से ऐलान वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में किए हैं, बिहार में मखाना बोर्ड का मैं जिक्र खासतौर पर करूंगा, क्योंकि उससे रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, बिहार की और देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही जो कपास महाराष्ट्र का जो किसान है, उसका भी ध्यान बजट में रखा गया। इन पहलुओं को आप कैसे देखते हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रोजगार के लिहाज से? देखिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है वो काफ़ी सालों से बहुत परेशान रहते थे कि ये ग्लोबल इकोनॉमी में कंपटीशन का बहुत दौर चल रहा है, हम उसमें लघु उद्यम का क्या मतलब उनका वायबिलिटी के ऊपर प्रश्न हो रहा था। अभी ये जो स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट ने लिए है, इससे एक एक कमोडिटी ग्रुप में फोकस कर रहे हैं। उससे जैसे वित्त मंत्री ने बोल रही थी कि वहाँ पे वैल्यू एडिशन, उनका निर्यात बढ़ाने का जो क्या क्या मार्केटिंग का उनको हेल्प मिलेगा, वो सब करने से वो हैंड होल्डिंग जो होगा, उनको भरोसा मिलेगा कि हम जो प्रोडक्ट यहाँ पे कर रहे हैं उसको हम खाली दूसरे जगह पे बेच पाएंगे, ऐसे नहीं है, हम बाहर भी निर्यात कर पाएंगे। तो एक तरीके से एक उनको भरोसा दिलाने वाली बात हो रही है। आपने चाहे मखाना बोर्ड बोलिए या फूड प्रोसेसिंग के दिशा में जो एक इंस्टीट्यूट को ये किए हैं, उसके वजह से एक काफ़ी अच्छा क्या है, एक मैसेज लोगों को गया है कि आप एक ग्लोबल इकोनॉमी के डर से आप ये सब छोड़ मत दीजिए, आपको ये भी जो लघु उद्यम है उसमें भी भरोसा कर सकते हैं और उसमें भी रोजगार का अवसर मिलेगा। तो ये जो फोकस प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी है, वैल्यू एडिशन होगा, उसको कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, मेरे ख्याल से ये काफ़ी दिन से होना चाहिए था। क्योंकि जो चाइना वगैरह से हम जो कंपटीशन फेस कर रहे हैं, वहाँ से स्पेशल इकोनॉमिक जोन, फोकस्ड प्रोडक्ट, फोकस मार्केट, ये सब काफ़ी मतलब ये अप्रोच रहा है। तो ये अभी भारत कर रहा है, ये बहुत बड़ी दिशा है देश को आगे लेने वाले के लिए। जी बिल्कुल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट में किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य योजना का भी ऐलान किया है। जाहिर तौर पर राज्यों के साथ सरकार ये योजना चलाएगी और इससे करोड़ों किसानों को फायदा होगा। टीना, कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कृषि और किसानों को ध्यान में रख के सरकार ने की हैं। जी
You're right, Manoj. We've spoken about some of these crucial reforms that the agriculture sector was in need of. Agriculture has been one of the key priorities for this government. We saw 6 months ago as well in the budget presented for 2024-25, agriculture was among the top priorities. This budget, in a way, has sought to build up on all of those measures that were announced in the first full budget of the Modi 3.0 government. But another critical sector, Professor Dash, that we would like to speak about is infrastructure. The Economic Survey has pointed out that over the next 2 decades, investment in the infrastructure sector has to be significantly scaled up. Yes. How do you see the budget, or what are the kind of measures that you see the budget having taken through which the infrastructure sector has gained? I think infrastructure sector has got enough of attention in the last few budgets, and that should have happened also. This year, if you see, the measures announced are broadly in continuation of what they have done in the past, but it signals much more than that. That investment is playing the role of creating or pushing that, fueling that growth process. Now, continuing with the, say, interest-free loan of 50 crores and engaging the state. She has emphasized categorically you have to engage the state. So, engaging the state and thinking of innovative financing instruments. They have said that each ministry will come with a 3-year pipeline of projects that will be implemented in PPP mode, public-private partnership mode. So, these are some of the things that you see in academic discourse people are discussing over the world. That we have to move into innovation, innovative financing, engaging private sector investors, engaging institutional investors. And if you categorically see the specific focus on broadband connectivity, because rural area they have been facing the issues of the speed of the internet. They have internet, kiosks are there, but the speed of the internet has been an issue. So, laying the optical fiber there and expanding the broadband connectivity to secondary schools, primary health centers. So, these are some of the forward looking infrastructure sector measures which will help the economy in long run. And we have already seen the capex growth. For the last 4 years, the capex has gone up from 2.1% of GDP in 2021 to 3.2% last year, and which is going to increase. So, overall, what has been announced for the infrastructure sector was much needed, and we need to continue to focus on infrastructure, but not infrastructure for sake of infrastructure creation, infrastructure as an enabler of inclusive and sustainable development, which will ultimately translate the goals of Viksit Bharat. Right. Before we proceed further, let me introduce another guest joining us in the studio, Dr. Sabyasachi Saha, Associate Professor, RIS. Professor, glad to have you with us on this telecast. We've been talking about how different sectors have gained from the budget presentation, the 8th consecutive one by Finance Minister Nirmala Sitharaman. Before we delve deeper into what you think or which sector, according to you, has been the biggest gainer, your first thoughts on an overview of the budget, what it's like, and how does it set the roadmap towards achieving the goals of Viksit Bharat? Thank you very much for having me on the show. First of all, let me congratulate Honorable Finance Minister for presenting this wonderful budget. I may call it a happiness budget because it has generated a lot of happiness among people. And she has been able to meet the expectations that were there from certain sections of the population, and which was much more required. If we see what Honorable Prime Minister said yesterday, that the focus would be on innovation, inclusion and investment, and that is what is getting reflected in the budget today. As you know, the external sector and the world geopolitics is in a very difficult shape at this point. So, the larger context in which a country of India's size and population needs to set its strategy and agenda for Viksit Bharat is extremely important in a very difficult external sector scenario at this point. So, rightly what Honorable Finance Minister has done this time in her budget is to
strengthen the domestic drivers of economic growth, and that's what is coming out primarily from the budget. So let me talk about education, because Professor Dash did mention about some of those measures and announcements related to education and skilling. So the finance minister has announced 50,000 Atal Tinkering Labs to be set up in government schools in the next 5 years. The Bharatiya Bhasha Pustak scheme, that seems to be quite interesting, which provides a digital form to Indian language books for schools and higher education. At the same time, new national centers of excellence for skilling. How do you see all of these measures strengthening the education sector at the same time? Because while we move towards a Viksit Bharat vision, we have to realize that our strength lies in the youth of the country. They are going to be the major drivers. So unless you put them in the driving seat, all of this vision will not be realized. So putting them in this center of the growth story. You are absolutely right, and this again I see as a continuation from last year's budget, when youth and entrepreneurship and skill building was squarely the focus last year, with lot of new initiatives like the Pradhan Mantri internship schemes and others being announced. And this year we see lot of new announcements coming in to expand the technical education part of higher education, when it comes to increasing number of seats in the IITs, when it comes to increasing the number of medical seats, and that the concomitant commitments on infrastructure development around the infrastructure for higher education, scientific research and innovation. And this again is a continuation from the past few years, where we have seen considerable commitments and investments in this sector, and definitely along with higher education, along with broad-based innovation, implementation of the national education policy and others, this is creating the right kind of, because today's youth are going to be the workers for tomorrow and also the leaders for tomorrow, and they are going to be the pillars of Viksit Bharat. And I think this momentum needs to be retained, and we are going to see the benefits soon. Hopefully, Professor Dash, while the capacity of IITs is set to be expanded, another measure which is straddling the domains of both education and healthcare is the proposal to add 10,000 additional seats in medical colleges and hospitals. How timely, how significant for a country which now has the world's largest population? You see, we have already made that point before. There should be enough of provision to make sure that the social safety net is quite broad, yes, and you are preparing the nation for the future. When we are thinking of Viksit Bharat in a larger perspective, now this is the time to invest in education and health, and we have a good story to tell. If you see the economic survey, the out-of-pocket expenditure has gone down drastically from 62% to 39.2%, which is remarkable. Now, what does it mean? That people are paying less from their pocket for the services they are getting. Now, by increasing the medical seats, what you are doing, you are adding more doctors in the workforce. And we have seen in our own ways, the rural primary health centers, very often the doctors would not be there. Yes. Or they have difficulty to attend the job. They must be saying connectivity issues and others. So maintaining the steady supply of doctors, we are actually matching the requirement of the demand for medical services, both private and public. So combining with the overall research, innovation, and the capacity of the IITs, so this is a consistent approach to sort of look into the supply side of the infrastructure. Investing in people is I see stressed on that point. She referred to schools, she referred to medical education, and then technical education. You refer to that language thing that you said. No, let me tell you one more initiative they have taken recently. One nation, one subscription. Yes. That all the research scholars, students of universities will have equal access to the library resources, which is fundamental to any sort of research environment that you create in a country.
There are many universities which are privileged because they have resources, they are better placed in location-wise. But by making this scheme, all the universities are made into one common net, that you will have access to the library resources that are available. So overall, the research and environment space is also equally sort of credible sort of move. 6,500 additional IIT seats will probably take into account the students of the communities, those who are not getting chance. Yes. So that will expand the technical education spectrum, and which is needed for India of 2047. जी, जाहिर तौर पे वित्त मंत्री निर्मला जी ने जो टेक्निकल एजुकेशन है उसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में, उस शिक्षा के क्षेत्र में कैसे अनुसंधान के और अवसरों को बेहतर किया जाए, इस दिशा में भी खासा जोर दिया है। लेकिन एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो बीमा क्षेत्र में FDI का है, उसको लेकर भी एक बड़ा फैसला उभर के सामने आया है इस वित्त बजट में। साथ ही मेडिकल पॉलिसी पर जो छूट मिलती थी उसको लेकर भी सरकार ने राहत दी है, और भी तमाम जिस तरह से जन कल्याणकारी योजना हैं उसके जरिए सरकार ने आम आदमी को राहत देने की प्रयास किया है। मैं आपसे समझना चाहता हूं जो खासतौर से बीमा क्षेत्र में FDI का फैसला है, 74% की सीमा को बढ़ाकर 100% कर दिया गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? खासतौर से बीमा क्षेत्र जो सेक्टर है जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है, लोगों की आकांक्षाएं भी इससे जुड़ी हैं, लोगों का हित भी इससे जुड़ा हुआ है, साथ में देश की अर्थव्यवस्था, आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो हमारा सर्विसेज सेक्टर्स हैं जी, इस जो डायनामिक सेक्टर्स हैं उसमें से आते हैं ये बीमा सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर। इसमें FDI का जो सीलिंग है अगर हम बढ़ा देते हैं, 100% कर देते हैं, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट पे आएगा, FDI फ्लोज बढ़ेंगे। इसमें काफ़ी लोग बाहर जो हैं वो चाहते हैं कि इस सेक्टर को और ज़्यादा एक्सप्लोर करें। वित्त मंत्री ने ये भी बताया कि जो हमारा FDI का जो गार्ड रेल्स हैं कुछ सेक्टर्स में हम रखते हैं, वो सेंसिटिविटी के तहत रखते हैं, कुछ सेक्टर्स में चाहते हैं कि कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट है वो हार्म ना हो, उसके लिए हम रखते हैं। लेकिन उस पर भी हम रिव्यू करेंगे, और इसका जो लिमिट है हम 100% तक कर रहे हैं। उसमें भी कुछ राइडर्स हैं कि वापस वो निवेश हमारे देश में ही होना चाहिए जी। और इसका जो फ़ायदा भी, क्योंकि बीमा क्षेत्र जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ेगा, ये जायज़ है कि बीमा क्षेत्र बढ़ेगा। आज के डेट में जो भी बहुत जगह पे जो लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, आपके व्हीकल इंश्योरेंस है, तमाम चीज़ों पे इंश्योरेंस का जो प्रोविजंस हैं उससे ओवरऑल वेलफेयर हम देख पाते हैं, तो इसमें कंट्री का अच्छा होगा जी। You know, while we are talking about insurance, Manoj ji, it's also important for us to talk about another critical sector. And after the COVID setback, the healthcare system, we see the government has allocated 95,957 crore rupees for developing, maintaining and improving the healthcare system. And all of this includes the various schemes, the existing schemes which are catering to different sections of the society, such as the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, which has got an allocation of 9,406 crore rupees, and 4,200 crore rupees have been allocated for Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission. So very critical, because these are ongoing schemes and which are benefiting crores of people of different sections in our society. But one aspect which caught the eye, Professor Dash, was how we are working towards making India a hub of medical tourism. So at the, simultaneously when we're talking about making India a global manufacturing hub, we are enhancing and putting in a lot of money towards infrastructure development. We are also working towards creating a system which provides affordable and the best healthcare system, not just to the people of India, but to those who are seeking to come here and enjoy the hospitality here. No, I think you are right. As you rightly mentioned that we still provide affordable healthcare. We receive many foreign patients coming to India. If we just see any private hospital, whatever we visit, the international patients, we just chat over there, they say that they have much better experience in India. So it is precisely because despite of whatever
infrastructure deficiency in the face of, in terms of hospital beds, or sort of there may be lacuna in terms of the overall infrastructure in some pockets, but we have kind of ensure that we provide the health services that are affordable and of global quality. By expanding the AIIMS network of institutions and providing greater support to the state medical colleges. I am telling in terms of the overall policy push that has happened over past few years, that has propelled India's medical sector globally known. That yes, and please don't forget that the medical tourism also refers here to the alternative medicine that we have. Yes. Ayurvedic, homeopathy, and so the Ayush Ministry over time has done a lot of awareness generation about the products, the services they can give. There are Ayurvedic hospitals in the various parts of the country. I personally party to study at my institute that we didn't know so many foreign patients visit that hospital. So, and that is not specific to certain diseases. There are many diseases which we believe that traditional medicine perhaps would not address those issues. So, overall the medical tourism being attracted towards India, or the patients choosing India as a destination for treatment or for happiness and the overall well-being is an outcome of the policy initiative that we have taken in the past, and this budget gives a thrust to that, to sort of continue with that sort of momentum and thrust that we have. Professor, that leads me to the question on the thrust towards digital advancements. India is witnessing and is in a phase of rapid digital transformation. We've seen several schemes even in the last budget that were announced to drive forward the digital transformation that our country is currently witnessing. How has this budget sought to accelerate or give momentum to that kind of transformation digitally, at the same time keeping in balance and sort of having a cautionary approach towards the rampant use of artificial intelligence? Digital India has been one of the most prominent modes of governance in this country for the last 1 decade or so. From the time we started with Jan Dhan account, Jan Dhan mobile revolution, the massive infrastructure of digital public, what we call as digital public infrastructure, is aiding governance at all levels. It is aiding direct benefit transfers at all levels. It is helping healthcare delivery. It is helping support for farmers, among others. So we are the global leaders in digital public infrastructure, and that is the story of our digital transformation. It is because of our policies, it's because of the startup ecosystem, it is because of public-private partnerships, it is because of investments, etc. But definitely, having created this wide base, we are transforming towards a new era where much more complicated technologies are in front of us. We see them as force for good, like artificial intelligence. Government has already announced AI mission in the past, and several initiatives. When we are talking about the infrastructure investment, we are talking about scientific research across various fields. They are actually leveraging the wide infrastructure that has already been created in the last few years. Professor Dash, while artificial intelligence is creating a lot of new opportunities, is there need to have a regulatory framework to check the misuse of how this technology is going to impact people in our country? And especially the Economic Survey also has a very balanced approach when it comes to dependence, and especially in context of India's labor class being dependent on the use of this kind of technology. No, I think the problem with the advanced digital technologies has been that are they misusing the data that they have access to, and which they call the ethical aspects of artificial intelligence. Now, artificial intelligence behaving like human
humans and providing solution to all critical areas of human action is a good thing. I mean, we have created the AI mission, and we see that AI could generate a lot of jobs. But what about the misuse of the data they get? I mean, there are apps where you can put some search and you get very fancy response to that. So that, I mean, that may not be the valid kind of information or the true information that you are looking for, be it a map of a country or be the origin of any particular species. So these AI based digital solutions many times could generate misleading information, and relying on entirely, we have seen the application of AI in terms of driverless cars. That has not been foolproof technology yet. So relying on AI generated information for taking certain policy for, say, any welfare scheme or any sort of developmental thing could be misleading also, in addition to its benefits. So the ethical dimensions of AI needs to be regulated. So while promoting AI at the side, on the sidelines, we need to prepare our regulatory preparedness so that AI adoption does not become a craze, but AI adoption becomes a purpose-driven टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन इन आवर सोसाइटी एंड इकोनॉमी। जी बिल्कुल प्रोफेसर साहब, अगर बात टेक्नोलॉजी की जाए, डिजिटल इंडिया की या एआई की, उसके जरिए भारत ग्लोबल लीडर के तौर पे उभर रहा है दुनिया में। लेकिन एक महत्वपूर्ण मुद्दा प्रोफेसर साहब जो आम लोगों के जीवन से जुड़ा है, अगर कस्टम ड्यूटी को मैं बात करूं, उस पर एक महत्वपूर्ण फैसला वित्त मंत्री जी ने इस बजट में लिया जो सीधे सीधे कैंसर जैसे जो मरीज हैं उनके जीवन से जुड़ा है। 36 ऐसी दवाओं से कस्टम ड्यूटी को हटा लिया गया है। जाहिर तौर पर इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट उन लोगों को होगा जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। इस फैसले को आप कैसे देखते हो? क्या इसका इम्पैक्ट होगा? दवाइयों पर क्या होगा? अर्थव्यवस्था पे क्या होगा? इसको कैसे देखते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण एक फैसला है, और आप अगर दुनिया भर का तजुर्बा देखेंगे, बहुत कम देशों में इतना सेंसिटिविटी के साथ ये मुद्दे को देखा जाता है। फार्मास्यूटिकल प्राइसेस, ड्रग प्राइसेस दुनिया भर में एक गंभीर समस्या है। सिटीज़न को वेलफेयर देने के लिए जो ड्रग प्राइसेस का रेगुलेशन होना ज़रूरी है वो काफ़ी देश में नहीं है, तो ये मार्केट फोर्सेस द्वारा ही डिटरमिन्ड होते हैं बहुत जगह पे। हमारे देश में ऐसा है कि बहुत ऐसे ड्रग्स हैं जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं, उस पर अगर हमारा ड्यूटी हम ज़ीरो कर देते हैं, 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स दैट आर मेंट फॉर कैंसर, इसमें हमने बीसीडी को ज़ीरो कर दिए हैं। उसके बाद 6 और लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट ड्रग्स हैं, उसमें हमारा 5% बीसीडी है। और बल्क ड्रग्स, जो बल्क ड्रग्स इस तरह के ड्रग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम में आएगा, उस पर भी हमने बीसीडी को ज़ीरो कर दिया है। इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। आगे चल के हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, कैंसर एक बहुत बड़ा बर्डन डिजीज़ है हमारे कंट्री में, तो लोगों को इसमें बहुत रिलीफ मिलेगा, ये तो जायज़ बात है। और इस तरह से अगर गवर्नमेंट के बहुत पॉजिटिव वेलफेयर इम्प्रूविंग स्टेप्स है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की बात की गई है अभी, तो ये सारा मुद्दा उसी के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें सिटीजन्स को फ़ायदा होगा ये, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा फाइनेंस मिनिस्टर को इतना बड़ा एक डिसाइसिव अनाउंसमेंट करने के लिए फॉर लाइफ सेविंग ड्रग्स। Certainly, 200 cancer care centers have also been announced by the finance minister in this budget. Professor Dash, a question on innovation and research. Yes. Has the budget been able to address concerns related to strengthening India's research ecosystem, answering all of those concerns related to the research conundrum? One thrust has to be on research, on strengthening research if we are to realize the goal of Viksit Bharat, because we are looking at reducing dependency and creating our own indigenous technologies. So how has the budget sought to address all of those concerns? See, the first thing is that they have kind of increased the PM fellowship to IITs and Indian Institute of Science, 10,000 more fellowships.
More than that, by increasing the student strength itself is a major move in that direction. Because by increasing the student strength, indirectly we are putting the creating the demand for more faculty, and all the faculty of IITs and IIScs are encouraged to do cutting edge research. बिल्कुल. So the more faculty you bring, more support you provide in terms of that. So indirectly you are pushing research to another level, which is a continuation, as I mentioned, the one library, one subscription scheme, sorry, one nation, one subscription scheme. So I could see that the research and innovation focus is a continuation of the past 2 years of budget, and it should continue. There is enough of indication in the budget to promote research and create the enabling environment for research. बिल्कुल. डॉक्टर साहब, कुल मिलाकर ये जो बजट की सारी चर्चा है, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते रहेंगे. फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है. ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से बजट में लोगों के लिए प्रावधान किए गए हैं, किस तरह से उनको राहत दी गई है और किस तरह से ये समझा गया है कि बजट एक खुशहाली लाने वाला बजट है, आम लोगों के लिए बजट है, किसानों के लिए बजट है, कारीगरों के लिए बजट है, बेरोजगारों के लिए बजट है, युवाओं के लिए बजट है, महिलाओं का बजट है. और इस बजट को समझने की कोशिश करेंगे. लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ. अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक. Namaskar, welcome to Sansad TV's continuous day-long coverage of the Union Budget 2025-26. I am Namrata Singh and joining me is my colleague Ramveer. So we have been bringing you all the updates and key takeaways from the budget presentation by Finance Minister Nirmala Sitharaman earlier today. This marks her record-breaking 8th consecutive budget, the second of the Modi 3.0 government. So to understand what this budget means for the nation, the economy and each one of us, we have an esteemed panel of guests with us who will help us understand the implications across sectors and how different stakeholders might benefit from these proposals. So to get the detailed understanding, we're joined by
our esteemed panel of experts, Mr. Gopal Krishna, former Secretary Shipping. We also have in the studio Dr. Sabyasachi Saha, Associate Professor, RIS. I'm delighted to have you both on Sansad TV, sir. I'll begin with you, Mr. Krishna. Your big read from the budget speech. Yes. So if we see the last two budgets, great emphasis was placed on investment in infrastructure sector. There was a huge jump of 30%, more than 30% in each of the last 2 years. This year has been a slightly different kind of emphasis on infrastructure. Infrastructure is recognized even in the economic survey, which was released just last year, that infrastructure over 20 years or a long-term period will remain the main driver of growth in the country. And growth obviously is being placed at the pedestal of government policies. This budget, while recognizing that particular aspect, has been a very different kind of budget because it lays now direct emphasis on employment creation. That has been a big, I would say, story. Obviously, a lot of us are also had a, look at the direct tax, proposals which are there. But from the economic point of view, I think so emphasis on employment, emphasis on MSME has been a big takeaway from the sector. Let me come to the sector which where I was working up till 3 years back. I was secretary of the Ministry of Shipping, Ports and Highways. If we see, for the first time, such great emphasis has been placed on shipbuilding. I have not seen in the last 15 years so much emphasis being placed on shipbuilding. Shipbuilding is a very important sector. Our nation has made huge strides in automobile sector. I think so time has come, and that has been recognized with this budget very clearly. The emphasis is very clear. We need to emphasize that the shipbuilding sector is another sector which is a great opportunity for India as far as employment generation is concerned. And that emphasis has been placed on a number of things which has happened. Yes. इस चर्चा को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं. सव्यसाची, अगर हाइलाइट्स की बात करें तो सुबह से लेकर माननीय वित्त मंत्री ने भी और हमारे एक्सपर्ट्स ने भी सारी हाइलाइट्स को कवर किया ही है. भले ही वो किसानों की जो क्रेडिट वैल्यू सीमा लिमिट है उसको 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया गया हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनाने की अनाउंसमेंट की गई हो, चाहे वो गांव के सरकारी स्कूलों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने की बात की गई हो, चाहे वो बिहार में मखाना बोर्ड की इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई हो, डेयरी डेवलपमेंट, फिशरीज़ के लिए उन्होंने 5-5 लाख रुपए की लोन की स्कीम उसको किया हो. ऐसे एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर मैं देखूं तो इस तरह की बहुत सारी अनाउंसमेंट हैं और इसके अलावा बहुत अनाउंसमेंट बाकी पूरे बजट में है. ये बजट कुल मिलाकर 50,65,000 करोड़ रुपए का था, जिसमें से 2.25 लाख रुपया जो है वो एग्रीकल्चर के लिए अलोकेटेड किया गया. इसमें जो मैं कुछ सेक्टर देख रहा था, एग्रीकल्चर में स्पेशली जो आर्थिक सलाहकार, भारत के आर्थिक सलाहकार ने जो जब इकोनॉमिक सर्वे के बाद पीसी की और उन्होंने कहा कि एरिया ऑफ फ्यूचर क्या है, तो उन्होंने एग्रीकल्चर की तरफ इशारा किया, उन्होंने एमएसएमई की तरफ इशारा किया. तो इसको लेकर के जो पूरा एक नज़रिया है उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, क्योंकि जब आप विकसित भारत की बात करेंगे तो 2 चीज़ें आपके पास होना शायद ज़रूरी होगा. आप निर्माण कर सकें, प्रोडक्शन कर सकें और एक्सपोर्ट कर सकें. तो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और आप उसे एक्सपोर्ट कर सकें उस लेवल पर. इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी तैयारी आपको इस बजट में कितनी दिखती है? ये जो बजट है, ये हमारा उम्मीद ऐसा था कि जो इकोनॉमी का बेस है, बिल्कुल उसको स्ट्रेंथन करने के लिए जो भी उपाय किए जाना चाहिए वो आएंगे. ये जो नज़रिया है, ये हमारे जो पिछले 1-2 साल के बजट देखेंगे पोस्ट कोविड, जो हम रिकवरी की बात करते हैं, उसमें एग्रीकल्चर पे हमारा बहुत ज़्यादा फोकस रहा है. ये बहुत ही मतलब ये जो एग्रीकल्चर को लेके एक नेगेटिव सेंटिमेंट हर टाइम उभर के आता था, उसको दूर करने के लिए जो पॉजिटिव कदम उठाए जाने चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर में, पिछले कई बजट से वो हम देख रहे हैं. इसका 2 कारण है. एक तो हमारा आबादी इतनी ज़्यादा है, फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा कंसर्न है. दूसरा है फार्म लाइवलीहुड का कंसर्न. बिल्कुल, जो हमारे जो किसान हैं उनका आय बढ़े, अर्निंग बढ़े.
तीसरा ये है कि ग्लोबली जो सिचुएशन है वो कंड्यूसिव नहीं है फूड सप्लाईज के लिए। हम बहुत ज़्यादा कुछ प्रोडक्ट्स में इंपोर्ट डिपेंडेंट नहीं हो सकते। डॉक्टर साहब, एक बात मैं कहना चाहता था कि एग्रीकल्चर वैसे तो दूर से वैसा दिखता है कि नहीं, इसमें कहाँ, इसमें रोजगार कहाँ होगा या इसमें व्यापार कहाँ होगा, इसमें इंडस्ट्री कहाँ होगी, लेकिन जब आप फूड को प्रोसेस में डाल देते हैं तो इंडस्ट्री बन जाता है। तो इस दिशा में जो है वो कितना काम हुआ है इस बजट में जो दिख रहा है डॉक्टर साहब? देखिए, अभी आपने ही बताया कि हमको एक्सपोर्ट की तरफ देखना। एक, फूड प्रोसेसिंग तो देश के अंदर हुई, बिल्कुल। दूसरा ये है जो डिमांड है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की पूरे दुनिया के अंदर, अगर हम उसको ठीक से मान्य जो स्टैंडर्ड्स हैं एक्सपोर्ट के, अगर वो ठीक से हम मेंटेन करें तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल है। पोर्ट्स बोले आप अपने एयरपोर्ट्स बोले, तो नए नए एयरपोर्ट्स बनाना, इस बार नए एयरपोर्ट्स बनाने की बात हुई है, और चाहे डायरेक्टली बात पोर्ट्स की नहीं हुई है, ग्रीन एयरपोर्ट बनाने की बात हुई है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं कि मुंबई में जो JNPA हमारा जो पोर्ट है उसमें एक पूरा नया वेयर हाउसिंग बन रहा है जो रीफर से जिसे मतलब एयर कंडीशन, जहां से जितने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पूरे महाराष्ट्र और उसके आसपास के एरिया होंगे वहां आके स्टोर होंगे, उसको एग्री जोन ही बोल रहे हैं वो, और वहां से फिर वो पूरे जो है स्पेशली मिडिल ईस्ट के अंदर एक्सपोर्ट होंगे। तो वो एम्फेसिस जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर वो कायम है इस बजट में। और जैसे मैंने पहले भी बोला, बहुत ज्यादा एम्फेसिस एम्प्लॉयमेंट पर है, वो जहां MSMEs और एम्प्लॉयमेंट पर इस बजट पर दिख रहा है इसमें। सो डॉक्टर साहा, एंड productivity is the main focus this time, last time also, but you know, this time what we could see that government is set to launch mission for Atmanirbharta in Pulse, again focusing on productivity. पल्सेस में ये अनाउंसमेंट हुआ है। वी हैव सीन इन पल्सेस, वी हैव सीन इन सी फूड एक्सपोर्ट्स, फोकस ऑन सी फूड एक्सपोर्ट जो हमारा बहुत बड़ा एक सेक्टर है, और कॉटन का क्वालिटी, जो क्वालिटी कॉटन, इस पे बात हुआ है। अभी हम पल्सेस में ऑफ कोर्स में जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ कमोडिटीज़ ऐसे हैं जिसमें हम इंपोर्ट डिपेंडेंट नहीं रह सकते। हमें हम वो जो है फूड सिक्योरिटी के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, डाइवर्सिफिकेशन के दृष्टिकोण से वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे लोगों की रोजगार बढ़ेगी, जो हमारा फूड बास्केट है वो डाइवर्सिफाई होगा, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी वहाँ से आता है। तो इसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हाई क्वालिटी सीड्स पे आज बात हुई है, सी फूड एक्सपोर्ट्स पे बात हुआ है। इसके साथ हर लेवल पे आप अगर ICAR का पूरा जो एक्टिविटी देखेंगे, रिसर्च से लेके एक्सटेंशन सर्विस तक, ये जो रिसर्च को स्ट्रेंथन करने वाला जो मुद्दा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, और इस पे लगातार काम हो रहा है। दुनिया में बहुत बेहतरीन सिचुएशन में हम हैं व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर। विनीत कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, संस्थापक हैं साइबर पीस फाउंडेशन के। आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी में विनीत जी। और यहाँ पर बजट को लेकर जो चर्चा यहाँ शुरू हुई है, इस चर्चा में हम एग्रीकल्चर को अभी कवर कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ तो जो इस बजट के जरिए जो एक तरह से जो बिछाया गया है पूरा, इसमें जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है उसमें ग्रीन इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन कितना हो सकता है? I think मेजर कंट्रीब्यूशन ग्रीन इकोनॉमी का हो सकता है, और यही मैं बोलना चाहूँगा, ये बजट इनफैक्ट बहुत ही इम्प्रेसिव है। और साथ ही साथ जिस तरह से ये टेक्नोलॉजी एरिना को बूस्ट कर रहा है, और ये एक तरह से हमारा विकसित भारत जो 2047 का जो सपना है उसको इनफैक्ट हमें अचीव करने में बहुत मदद करेगा, जिसमें एम्पावरिंग यूथ, विमेन, स्टार्टअप्स, MSMEs, ये सब चीज को देख के किया गया है, जो कि इनफैक्ट अभी देखा जाए तो जिस तरह से बाकी कंट्रीज हैं, जो भी टेक्नोलॉजी टेक से भी कंट्रीज हैं, जैसे अभी चाइना की बात करें और, तो AI का एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ रहा है। और यहाँ पे पोजिशनिंग इंडिया और एक तरह से एक रिसर्च और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सुपर पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और ये एक सिग्निफिकेंट हाईलाइट इसका रहा है कि जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं AI के एजुकेशन में, बैक्ड बाय इन्वेस्टमेंट ऑफ 500 करोड़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है, जिससे एजुकेशन फ्रेमवर्क को भी बूस्ट मिलेगा, इनोवेशन को बूस्ट मिलेगा, और लर्निंग को भी डेफिनेटली बूस्ट मिलेगा। इसमें अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी सरकार का एक गोल है जिसमें AI इंफ्रास्ट्रक्चर और एक इनफैक्ट फैसिलिटी की भी अभी स्थापना की जा रही है, जिसमें करीब 18,000
ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स और जीपीयूज एस्टैब्लिश किए जाएंगे। अभी हम देख रहे हैं किस तरह से वहाँ एआई रिवॉल्यूशन चल रहा है। तो आई एम वेरी श्योर कि एआई की बात करें, रिसर्च इनिशिएटिव्स की बात करें, अगर बात करें हम मैन्युफैक्चरिंग मिशन की बात करें, ये हर तरह से अगर देखा जाए, डेटा सेंटर्स की बात करें, क्योंकि हमारा इंडिया में अभी डेटा सेंटर्स का भी अभी बहुत रिक्वायरमेंट है, क्योंकि डेटा इज द नेक्स्ट ऑयल। और यहाँ पे इस पे टैप करना ताकि हम ये डेटा सेंटर्स का इकोसिस्टम बनाएं, डेटा हमारे यहाँ स्टोर हो। आई थिंक आने चल के हम देख सकते हैं कि ये हम एक तरह से सुपर पावर बन सकते हैं इस तरह के बजट से। और ये आई थिंक एक स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस है जो हमारा 2047 का सपना है। इवन अटल टिंकरिंग लैब्स जो बन रहे ATLs, ये भी बहुत बूस्ट करेंगे इस सेक्टर को। और जो भी बच्चे हैं स्कूल्स में, वहाँ पे उनको एक रिसर्च इनोवेशन और एक एनवायरनमेंट मिल रहा है, एक इकोसिस्टम मिल रहा है, जो कि शायद इनफैक्ट पहले था, लेकिन अब उसको और बूस्ट मिलेगा इनसे। तो ये सब ओवरऑल देखा जाए तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा ये बजट है। और खास करके ये मिडिल क्लास फैमिली की बात की जाए, इनफैक्ट लोगों की बात की जाए, तो मैं तो देख रहा हूँ कि लोग काफी खुश हैं। हम लोग भी बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि एक्सपेंशन भी हो रहा है एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का, टैक्स रिफॉर्म्स हो रहा है, एक नया बिल भी आने वाला है। और ओवरऑल MSMEs और स्टार्टअप्स, आई थिंक मैं कहूँगा द हार्ट ऑफ दिस इज MSMEs एंड स्टार्टअप्स। उनके लिए बहुत ही मेजर इनफैक्ट अपलिफ्ट मिला है इस बिल। और हम आपको सुनवाते हैं कि माननीय मंत्री नितिन गडकरी ने बजट के बाद क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। देश के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण बजट निर्मला जी ने आज पार्लियामेंट में पेश किया है। ये जो बजट की विशेषता ये है कि हमारी इकोनॉमी को एक्सेलरेट करने वाला ये बजट है। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर को हर समय वित्त मंत्री प्राथमिकता देते हैं, इस समय भी हमारा बजट बढ़ा है, जिसके कारण इंफ्रा रोड सेक्टर में इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। मुझे इस बात की खुशी है कि कृषि विभाग की ओर उन्होंने विशेष रूप से ध्यान दिया है। तिलहन हो, विशेष रूप से तेल बिया हो, इसके उत्पादन कैसे बढ़े और किसान आत्मनिर्भर कैसे बने, इसका भी विचार किया गया है। विशेष रूप से इनकम टैक्स के बारे में एक रिफॉर्म करके नया कानून लाकर इसको और सरलीकरण उसका करना, ये जनता के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। और 12 लाख रुपए के उत्पादन के लिए इनकम टैक्स में जो राहत दी गई है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से मिडिल क्लास का विचार किया गया है और मध्यम वर्गीय, उसके साथ लोअर मिडिल क्लास और गांव गरीब मजदूर किसान, इसमें रोजगार कैसे निर्माण हो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसी हो, इसका विचार करते हुए इस बजट ने पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इनकरेज किया है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा सेक्टर है, जिसके कारण नए रोजगार निर्माण होंगे, ग्रोथ बढ़ेगी और निश्चित रूप से देश के विकास में उसका योगदान होगा। जहाँ तक ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, हम 22 लाख करोड़ के फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करते हैं। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू भी हमारे लिए वो एक बहुत बड़ी समस्या है, पर उसके साथ साथ अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल को प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए विशेष रूप से लिथियम आयन बैटरी अब सस्ती होगी। स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बस, अब इलेक्ट्रिक ट्रक, इनकी कीमतें कम होगी। जो $150 पर किलोवाट पर आवर थी, वो $105 पर किलोवाट पर आवर आई है, वो $100 के नीचे जाएगी। और इलेक्ट्रिक के वाहन और लोकप्रिय बनेंगे, प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी और देश में नए रोजगार निर्माण होंगे। इसके लिए भी उन्होंने विशेष रूप से जो टैक्स में रियासत दी है, वो निश्चित रूप से बहुत उपयोगी है। मैं निर्मला जी का बहुत अभिनंदन करता हूं और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और विश्व की हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की प्रक्रिया में है, उसमें निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे, ऐसा विश्वास व्यक्त करता हूं। नमस्कार। Also, we are joined by Mr. Anand Singh Behel. He is former Principal Economic Advisor, Government of India. Welcome, Mr. Singh. Thank you. Namaskar. Namaskar, sir. This budget focused on 10 broad areas, including Garib, youth, women. Sir, your first takeaway from this budget? The important thing which strikes me about this budget is responding to the claims of the middle class. The middle class for long has been feeling neglected, and rightly or wrongly so.
they've had a grievance against the government. So this government has gone out of the way to appease the middle class, which was definitely required through the tax benefits. And that will unleash a lot of money into the economy. That will also boost demand in the economy. So one of the biggest takeaways for me from this budget is appeasing the middle class. And of course, then the emphasis on agriculture and manufacturing and startups. So these two together are the standout points for me. जी जी, हम आपके पास वापस आएंगे आनंद जी, और यहाँ पर इस चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं अगर सव्य सची। कुल मिलाकर जो विकसित भारत है, जिस जो बात की जा रही है, उसके लिए ये बात आई थी कि अगर 20 साल तक लगातार 8% की ग्रोथ भारत लेता है, तब हम विकसित भारत के लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं। इस लक्ष्य को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप इस बजट में लेते हुए देश को दिखाया गया है, सरकार को दिखाया गया है? ये विकसित भारत का जो हमारा लक्ष्य है, ये सिर्फ जीडीपी ग्रोथ दर से देखा नहीं जाना चाहिए, ये एम्पावरमेंट का एक रोड मैप है। ठीक है। सारे जो सेक्शंस हैं सोसाइटी के, ये जो अभी हमने बात की है कि नारी शक्ति, वो सबसे सामने की एक बात है, यूथ, वीमेन। तो इस पे सरकार का ध्यान तो है ही, लेकिन इसको जिस तरह से अभी आर्टिकुलेशन मिल रहा है, जिस तरह से फोकस मिल रहा है, हर जगह पे स्कीम्स में जो नए प्रोविजंस किए जाते हैं, स्टार्टअप, सोशल इंक्लूजन तो ठीक है, लेकिन पैसा जो है, उसकी पावर जो है, वो तो बजट का मतलब तो वहाँ उसको माना जाएगा। हाँ बिल्कुल, और पैसा जो है, पैसा में आपका ग्रोथ ड्राइवर्स वो इम्पोर्टेंट है कि आप तैयार होंगे कि मेरा इंडस्ट्री इतना एक्सपेंड करेगा, एग्रीकल्चर इतना एक्सपेंड करेगा, सर्विस इतना एक्सपेंड करेगा, लेकिन इसके लिए आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट। गोपाल कृष्णा, एक बात ये भी है कि भाई अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उसके लिए आप एमएसएमई को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करते हैं, आप उसके लिए फिर प्रोसेसिंग यूनिट्स जो हैं उनको बैठाते हैं, जो आपने मुंबई का एग्जाम्पल दिया वो सब है। इन सब के भी बेस में जो मैं देख रहा हूं वो है बैंक, और बैंक कई बार सरकार के इशारों पर नहीं चलता है। मतलब यहां से जिस तरह से पॉलिसी बनती है, बैंक देखता है कि पैसा रिकवर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, और कई बार ये आरोप तो बहुत पुराने हैं कि वो छोटे उद्यमियों को वो थोड़ा सा हिचकता है कर्ज देने से, बड़े लोगों को कर्ज उनके घर जाकर देता है। देखिए, क्रेडिट अवेलेबिलिटी टू MSME एंड इन दी रूरल सेक्टर बहुत ही एक अहम चीज़ है, और जिसकी तरफ आपने इशारा करा है। इसी बजट को अगर आप देखें, कितने तो फंड बनाए गए हैं स्टार्टअप के लिए। फंड मैं तो जिक्र करूंगा आपको, जैसे मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, तो विभिन्न तरीके के फंड इस बजट में हैं, जिससे जो MSME सेक्टर है उसको ज़्यादा चांस मिले। अच्छा, मुद्रा जो है, जो अभी तक टूरिज्म सेक्टर में लाया गया है इस बजट में, जो अनाउंसमेंट हुआ है, वो इस बार वंचित था टूरिज्म सेक्टर। तो विभिन्न जो सेक्टर के फंड्स हैं और नए नए फंड्स घोषित करे गए हैं, इस सब का तात्पर्य यही है कि किस तरीके से हम पूरे सेक्टर और जो लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी करना चाहते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी उनकी ठीक से अच्छे से कर सके। एक और चीज़ जो शायद मिस हुई है, मिस मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन इतनी हाईलाइट नहीं हो रही है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब महिलाओं के लिए एक स्पेशल स्कीम लाई गई है, जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको किस तरीके से 50 लाख का सरकार लोन दे और उस लोन से फिर वो उद्यम चालू करें। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये पूरा एम्फेसिस इस बजट का जो है वो MSME और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की तरफ है। Dr. Saha, changing consumption patterns have been a major concern. If you talk about agriculture, if you talk about industries and everything, this was the major talking point this time during the budget. So, what impact does it have on the farmers and productions? नहीं, ये कंजम्पशन में जैसे अभी बताया आपको, विथ राइजिंग पर कैपिटा इनकम, आपको ये डाइवर्सिफाइड बास्केट जो कंजम्पशन के लिए है वो आपको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। तो जो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी है, हम फूड सिक्योरिटी से न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की तरफ जा रहे हैं। इसमें जो रिटेल सेक्टर है उसका भी ग्रोथ उस तरह से हो रहा है। आप देखेंगे जो आंकड़ा है, हमारा रिटेल सेक्टर पिछले कई
वर्षों में कितना एक्सपेंड किया है। लेकिन हम ऐसा एक स्ट्रेटेजी देश के लिए सोचे कि जो मेक इन इंडिया है वो हम जो हमारा ज़रूरतमंद चीज़ है यहीं पे बने, तो इसके लिए ही सारा कोशिश है। मेक इन इंडिया इतना इंसेंटिव जो जा रहा है, इशारा किया गया है चाइना से जो खिलौने आते हैं सारे के सारे उसको रिप्लेस करने के लिए भारत को खिलौना है ना टॉय हब बनाने की बात की गई है बजट में। बिल्कुल, और टॉय तो हमारा सक्सेस स्टोरी है। लगातार अटेंशन जो हम सरकार ने टॉय सेक्टर को दिया है उसका फल हमें मिल रहा है, एक्सपोर्ट्स में बढ़ोतरी आई है और ये जायज़ है। लेकिन उसमें भी एक छोटी सी शब्द फाइनेंस मिनिस्टर बोली है विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट कि सस्टेनेबल टॉयज़, ये प्रदूषण में कंट्रीब्यूट ना करें। तो हमारा जो कल्चरल ट्रेडिशन है उसको भी सामने रखते हुए जो सस्टेनेबल मटेरियल से बना हुआ टॉय उसको भी बढ़ोतरी मिलेगा। अभी मैंने भूटान से एक स्टोरी पढ़ी, वहाँ एक शब्द आया है नम्रता, उन्होंने कहा है सजग पूंजीवाद, अवेयर कैपिटलिज्म। मतलब डेवलपमेंट हो, कैपिटलिज्म आए, लेकिन वो अंधाधुंध तरीके से नहीं आना चाहिए। वो जो टिकाऊ टॉय की बात है या उस तरह की बात है, ये भी शायद इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। देखिए, जिस भी इकोनॉमी में बहुत सारे कम लोग शक्तिशाली होते हैं इकोनॉमिकली, वहाँ ये समस्या होती है इनइक्वलिटी की भी। बिल्कुल। जैसे जैसे और जिस देशों में विकसित देशों में एमएसएमई ज़्यादा सेक्टर मजबूत होता है, वहाँ ये प्रॉब्लम अपने आप नहीं रहेगी। तो इशारा उसी तरफ है। हमारा देश जो है, हम बहुत ज़्यादा बड़े बड़े उद्योग, सारे उद्योग कुछ ही लोगों के हाथ में सीमित हो जाए। तो मुझे लगता है गांधीयन मॉडल है डेवलपमेंट का, क्या कहेंगे इस? देखिए, पूंजीवाद का एक जो मोमेंटम है वो तो है, क्योंकि वी हैव टू रेज पैरेलली जब हम सोशल स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं बजट में, तो फिर वो गांधीयन मॉडल की तरफ ही चला जाता है। बिकॉज रूरल इकोनॉमी को जब तक हम स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, आज भी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि माइग्रेशन इज ए ऑप्शन। आप बाहर, गांव से बाहर जा सकते हैं, लेकिन अगर गांव में ही आपको काम मिल जाए, आप वैल्यू एडिशन कर पाए, नॉन फार्म लाइवलीहुड आपको मिल जाए, फार्म लाइवलीहुड के साथ नॉन फार्म भी मिल जाए, तो आप बाहर क्यों जाएंगे? तो ये गांव, ऑफ कोर्स गांधी के जी के जो इतना बड़ा स्टेटमेंट है कि भारत गांव में बसा है, अब हम उससे काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, शहर में भी बसा है, लेकिन गांव का जो गुरुत्व है वो रहता है। और हमारी पॉपुलेशन दोनों, मतलब शहर में भी है, गांव में भी है। मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहता हूं डॉक्टर साहब के वक्तव्य में कि गांव से बाहर जाने के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, और स्पेशली जो ये हम समरसता की बात करते हैं, सब लोग समान रहें, एक साथ रहें, और जो कुछ हम चेंज करना चाह रहे हैं सोशल एटीट्यूड्स, वो भी बहुत बड़ा सहयोग देता है कि अगर लोग माइग्रेट करें, लेकिन उनको माइग्रेट करने के बाद हमें अच्छी तरीके से बसाना चाहिए। बस इतना है, ये नहीं है कि सब लोग गांव में ही रहें। माइग्रेशन का मतलब झुग्गियां नहीं होता है। हाँ। नहीं, देखिए, माइग्रेशन का अगर डेटा देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट तो आपने भी किया है, हमने भी किया है, नम्रता ने भी किया है, सबने किया है। लेकिन भारत में अगर आंकड़े देखेंगे, माइग्रेशन डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जो माइग्रेशन होता है, इंटर डिस्ट्रिक्ट जो माइग्रेशन, वो सबसे ज़्यादा है। गाँव से सिर्फ शहर लोग नहीं आते, गांव से छोटे शहर जाते हैं। गांव के बीच जो सीजनल लेबर का रिक्वायरमेंट होता है, इस राज्य से दूसरे राज्य में जाता है, तो ये सब कुछ इस डिस्कोर्स में आ जाता है। एक गोपाल कृष्णा जी, एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक बात जो है वो इस तरह से इशारा किया गया, जो मैं देख रहा हूं कि अभी वो कागजों से ग्राउंड पर तो नहीं दिख रही है उस तरीके से, और कहीं कहीं दिख भी रही होगी। वो एक तरह से हर कॉलेज को एक इंक्यूबेशन सेंटर के तौर पर देखते हैं। वो देखते हैं कि वो एक तरह से स्किल डेवलपमेंट का एक सेंटर भी होगा साथ में। वहाँ पर कुछ नए इनोवेशन होंगे, वहाँ पर कुछ स्टार्टअप होंगे, और वहाँ कुछ एग्जीक्यूट होगा, ठीक इस तरह का कुछ होगा। लेकिन कई बार ये लग रहा है कि जो एजुकेशन है, ठीक है, उसमें इस चीज़ की शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और उसमें जो हर्डल्स आ रहे हैं उनका जिक्र हम मॉर्निंग में कर भी रहे थे, तो वो भी कुछ चीज़ें हैं जिनकी ओर समझना चाहिए। रामवीर, आप बिल्कुल ठीक इशारा कर रहे हैं। अगर आप हमारा पुराना मॉडल को देखें एजुकेशन का, बिल्कुल ज़्यादातर रोट लर्निंग पर वो निर्भर है। आप उसको याद करें और उसके बाद एग्जाम्स में बैठे और उसको किसी तरीके से एग्जाम पर अपने याददाश्त से कुछ इनोवेटिव करके आप नहीं करते हैं। हाँ, आप जो डेवलप्ड सोसाइटीज़ हैं, वो सारा का सारा जो इनोवेशन आता है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस से ही आ रहा है।
सब कुछ, इवन उनका जो डिफेंस में जो जो नई नई प्रगति हो रही है वो सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज से और प्राइवेट सेक्टर से आता है। हमारे यहाँ वो लैकिंग है। अब आप एलन मस्क का ही एग्जांपल दीजिए। पूरा स्पेस प्रोग्राम इस समय जो यूएसए का है वो एक प्राइवेट इनिशिएटिव से चल रहा है और बहुत बड़ा प्रोग्राम है। ट्रंप साहब भी उसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सुनीता विलियम्स को आसमान से ले आइए, वापस लाइए। बिल्कुल ठीक आप बोल रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो ये नई पद्धति, हमारी जो शिक्षा नीति है उसके अंदर जो ये बदलाव है उस तरफ अगर जाए कि हमारे जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज, मतलब कॉलेज से निकलने के बाद आज भारत की विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट है। ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। हमने कई सेक्टर्स युवाओं के लिए खोल दिए हैं। सामान्य नागरिक विकसित भारत के मिशन को ड्राइव करने वाला है। यह बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। यह बजट सेविंग्स को बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को इस जनता जनार्दन का बजट, पीपल्स का बजट, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा, लेकिन ये बजट उससे बिल्कुल उल्टा है। लेकिन ये बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी और देश के नागरिक विकास के भागीदार कैसे बनेंगे, ये बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है। साथियों, इस बजट में रिफॉर्म की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने का निर्णय बहुत ही ऐतिहासिक है। ये आने वाले समय में सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का बड़ा योगदान देश के विकास में सुनिश्चित करेगा। बजट में रोजगार के सभी क्षेत्रों को हर प्रकार से प्राथमिकता दी गई है। लेकिन मैं दो चीजों पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उन रिफॉर्म्स की मैं चर्चा करना चाहूंगा जो आने वाले समय में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाले हैं। एक, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देने के कारण भारत में बड़े शिप्स के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी और हम सब जानते हैं कि शिप बिल्डिंग ये सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। उसी प्रकार से देश में टूरिज्म के लिए बहुत संभावना है। महत्वपूर्ण 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वहां पर जो होटल्स बनाएंगे उस होटल को पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर के दायरे में लाकर टूरिज्म पर बहुत बल दिया है। इससे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को, जो रोजगार का बहुत बड़ा क्षेत्र है, और टूरिज्म जो रोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्र है, एक प्रकार से चारों तरफ रोजगार के अवसर पैदा करने वाला एक क्षेत्र को ऊर्जा देने वाला काम करेगा। आज देश विकास भी, विरासत भी
इस मंत्र को लेकर चल रहा है। इस बजट में भी इसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और ठोस कदम उठाए गए हैं। 1 करोड़ पांडुलिपियों के लिए संरक्षण के लिए, मैन्युस्क्रिप्ट के लिए ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च किया गया है। साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा से प्रेरित एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जाएगी, यानी टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जाएगा और हमारा जो परंपरागत ज्ञान है उसमें से अमृत निचोड़ने का भी काम होगा। साथियों, बजट में किसानों के लिए जो घोषणा हुई है वो कृषि क्षेत्र और समूची ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई क्रांति का आधार बनेगी। पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों में सिंचाई और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख तक होने से उन्हें ज्यादा मदद मिलेगी। साथियों, अब इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले जिनकी आय बंधी हुई है ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। उसी प्रकार से जो नए नए प्रोफेशन में आए हैं, जिनको नए नए जॉब मिले हैं, इनकम टैक्स की ये मुक्ति उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर बन जाएगी। साथियों, इस बजट में मैन्युफैक्चरिंग पर 360 डिग्री फोकस है ताकि एंटरप्रेन्योर्स को, एमएसएमईज को, छोटे उद्यमियों को मजबूती मिले और नई जॉब पैदा हो। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन से लेकर क्लीन टेक, लेदर, फुटवियर, टॉय इंडस्ट्री जैसे अनेक सेक्टर्स को विशेष समर्थन दिया गया है। लक्ष्य साफ है कि भारतीय प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट में अपनी चमक बिखेर सके। साथियों, राज्यों में इन्वेस्टमेंट का एक वाइब्रेंट कॉम्पिटिटिव माहौल बने, इस पर बजट में विशेष जोर दिया गया है। एमएसएमईज और स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी को दोगुना करने की घोषणा भी हुई है। देश के एससी, एसटी और महिला जो नए उद्यमी बनना चाहते हैं उनको 2 करोड़ रुपए तक के लोन की योजना भी लाई गई है और वो भी बिना गारंटी। इस बजट में न्यू एज इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए गीग वर्कर्स के लिए बहुत बड़ी घोषणा की गई है। पहली बार गीग वर्कर्स का ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसके बाद इन साथियों को स्वास्थ्य सेवा और दूसरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का लाभ मिलेगा। ये डिग्निटी ऑफ लेबर, इसके प्रति श्रम एव जयते के प्रति सरकार के कमिटमेंट को दर्शाता है। रेगुलेटरी रिफॉर्म से लेकर फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, जन विश्वास 2.0 जैसे कदमों से मिनिमम गवर्नमेंट और ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस के हमारे कमिटमेंट को और बल मिलेगा। साथियों, ये बजट
न केवल देश की वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है, बल्कि हमें भविष्य की तैयारी करने में भी मदद करता है। स्टार्टअप के लिए डीप टेक फंड, जियोस्पेशियल मिशन और न्यूक्लियर एनर्जी मिशन ऐसे ही महत्वपूर्ण कदम है। मैं सभी देशवासियों को एक बार फिर इस ऐतिहासिक पीपल्स बजट की बधाई देता हूं और फिर एक बार वित्त मंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। So that was Prime Minister Modi congratulating the Finance Minister, saying the budget is a force multiplier for India. It is a people's budget. He emphasized that this budget will boost Atmanirbharta in different sectors like shipping, tourism, infra, hospitality. Mr. Krishna, so what do you have to say on this? I'm extremely happy that the Honorable Prime Minister, in his address on the budget, mentioned the importance of shipbuilding right at its start, and I think so. We have been seeing, pronouncements, budgets, announcements for a very long time. Automobile sector was always at the forefront of, job creation, technology, economy. Right. We have reached now, after that effort of 20-25 years, we are the third largest automobile manufacturer. But I must tell you that shipbuilding is a very, very important sector. It has got an investment multiplier of 2 and a employment multiplier of 6 to 7. Very important. Each one direct job creates 7 or 8 or 6, 7 employment in the indirect and the associated fields. Very important. And this Prime Minister is giving so much of importance. Finance Minister, the Shipping Minister, I must congratulate them that they have highlighted this. And India presently is at about 2021st. We only produce 0.03% of the total shipbuilding which is happening in the globe. China at 47% is number 1, and then number 2 and number 3 are Korea. काम करने के लिए खुला आसमान है। अब इस समय खुला आसमान है, और जो उन्होंने चीजें बताई हैं, इकोनॉमिक जो पैकेजेस दिए हैं, वो इंडस्ट्री को बहुत आगे आना चाहिए और उसको लाभ लेते हुए एक शिप बिल्डिंग को भी हमारा जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसके बराबर पहुंचाना उनका काम है। अब डॉक्टर सव्यसाची, एक बात और है जो प्रधानमंत्री ने कही, वो उन्होंने टूरिज्म को लेकर बात कही। टूरिज्म वास्तव में ही जब एक जगह लोग आते हैं तो वहाँ कितना एम्प्लॉयमेंट खड़ा होता है। अगर पूरे देश का कैलकुलेशन करें तो 4.5 करोड़ लोग टूरिज्म में एम्प्लॉयमेंट पाते हैं। टारगेट ये है कि 10 साल में ये 523 अरब डॉलर का ये कुल मिलाकर एम्पायर खड़ा हो। और उन्होंने ये भी कहा कि हम इस बजट में उन्होंने बाकायदा प्रावधान किया कि 50 ऐसे टूरिस्ट प्लेसों को नोटिफाई करके, आइडेंटिफाई करके उनको डेवलप किया जाएगा। और चूंकि हम एग्रीकल्चर सेक्टर से बात कर रहे थे तो ये नीचे तक भी जाता है। अब जो है एग्रो टूरिज्म, फार्म टूरिज्म, विलेज टूरिज्म, ये सब भी जो है चीज़ें शुरू हो गई हैं। आप क्या कहेंगे? टूरिज़्म पे जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा है, टूरिज़्म लगातार गवर्नमेंट की जो नई सोच है, मैं सिर्फ इसको पॉलिसी नहीं बताऊंगा, ये सोच है। सोच का परिणाम है कि आज टूरिज़्म सेक्टर इतना थ्राइव कर रहा है कंट्री में, और हम लगातार देख रहे हैं उसमें बजट एलोकेशन हो रहे हैं, पॉलिसी के सुधार हो रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप हो रहे हैं। हम छोटा सा एक उदाहरण देंगे। पिछले कई सालों में हमने पिलग्रिम सेंटर्स को सामने रख के टूरिज़्म को बढ़ावा दिए हैं। अभी देख पा रहे हैं कि महाकुंभ का जो उत्सव हो रहा है वो भी एक प्रकार से हम देखें तो हमारे लिए टूरिज़्म का एक पार्ट है जो उत्तर प्रदेश में उसका भारी लाभ मिल रहा है। ऐसे बाकी राज्यों में भी मिले, और इसके तहत जो हम लॉजिस्टिक्स है, इसका जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है टूरिज़्म सेक्टर में, जहाँ जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने बोला कि इसको भी इंफ्रास्ट्रक्चर के दायरे में लाया जाए, तो इसमें ऑफ कोर्स सो ये बहुत बड़ा एक क्षेत्र है। बहुत इसको फॉर्मलाइज किया जाए, इसको और सपोर्ट दिया जाए तो आगे चल के एक बहुत बड़ा क्षेत्र। हमारा तो पुराना सिविलाइजेशन है ही। बिल्कुल। एक कृष्णा जी, एक बात ये भी आ रही थी साथ के साथ, जब हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे थे, कॉलेजेस को जो है एक तरह से स्टार्टअप और इंक्यूबेशन, उन सब चीज़ों पर वहाँ से इस चीज़ों को शुरू करने की बात कर रहे थे। एक कोऑपरेटिव्स जो है
वो एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो एग्रीकल्चर, एमएसएमई इस सब को इनकॉर्पोरेट करता है। और इस बजट में कोऑपरेटिव्स को स्ट्रेंथन करने की बात की गई है। अमित शाह जो सहकारिता मंत्री हैं वो इसे लीड कर रहे हैं। और मैंने देखा कि 130 साल बाद भारत में दुनिया भर की कोऑपरेटिव्स का गेट टुगेदर हुआ, जिसमें 1000 से ज़्यादा डेलीगेट अभी पीछे इकट्ठा हुए। तो ये जो कोऑपरेटिव कल्चर है, इसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, किसानों के साथ कैसे उसको एसोसिएट कर सकते हैं, वो उनमें है, बस उसको थोड़ा सा और ज़्यादा। देखिए रामवीर जी, आप देखें तो कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री जो है वो अभी 2 साल पहले ही तो बनाई है, इससे पहले कभी थी नहीं। बिल्कुल। तो सरकार का क्लियरली ये दिख रहा है कि कोऑपरेटिव मूवमेंट को किस तरीके से बढ़ाया जा सके। महाराष्ट्र के अंदर शुगर जो है वो अपने आप में एग्रीकल्चर एक प्रोडक्ट है, लेकिन उसका जो बढ़ावा मिला वो पूरे कोऑपरेटिव सेक्टर से मिला। क्योंकि माने वैल्यू एडिशन जितना शुगर के अंदर महाराष्ट्र में होता है शायद कहीं और इतना नहीं होता है, और उसी का नतीजा है कोऑपरेटिव मूवमेंट। इसी तरीके से अगर हम देखें दूध उत्पादन में हमारा जो रेवोल्यूशन आया वो गुजरात में, वो कोऑपरेटिव सेक्टर से आया। बिल्कुल। अब हमें आवश्यकता है कि सेक्टर वाइज हम देखें कि क्या क्या किस स्टेट में क्या स्ट्रेंथ है किसी सेक्टर की, और उसमें हम किस तरीके से कोऑपरेटिव मूवमेंट को आगे बढ़ा सकें। क्रेडिट, थिंकिंग, उसमें के बाद ट्रेनिंग, लोगों का एक कोहेसिवनेस करना, लोगों को बहुत सारे कोऑपरेटिव सेक्टर की रिक्वायरमेंट्स भी हैं। ऐसा नहीं है सब जगह ये सक्सेस ही होगा, लेकिन हमें पहचान करनी है, बेसलाइन सर्वेस करने हैं, पहचान करनी है कि कहाँ क्या चीज़ सक्सेस हो सकती है, कहाँ गुंजाइश है कि कोऑपरेटिव सेक्टर को हम आगे बढ़ाएं। लाभ बहुत मिल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए मंत्रालय बनाया गया, और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जो हमारा फिगर है, पॉलिटिकल फिगर और एडमिनिस्ट्रेटिव फिगर है, आदरणीय, उनको उसका दायित्व दिया गया। तो सरकार की क्लियरली एक सोच तो है कि इसको बढ़ावा दिया जाए। Dr. Saha, one thing I would like to ask, because AI is the buzzword, right? So in agriculture, in every sector we have been including AI. So what do you think, how will AI impact agriculture and what kind of transformations can we expect in this sector? ये आज जैसे बजट में अनाउंसमेंट हुआ, इंडिया हैड ऑलरेडी लॉन्च्ड इट्स AI मिशन, लेकिन आज उसके लिए बजट एलोकेट किया गया। हाँ, बजट एलोकेशन हुआ। आई थिंक मैं देख रहा हूं फिगर 500 करोड़ रुपया है शायद। 3 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की आज अनाउंसमेंट हुई है, एग्रीकल्चर में, हेल्थ में, अर्बन सेक्टर में और एजुकेशन में। जो हम बताए जा रहे हैं कि AI का पावर बहुत ज़्यादा है। मतलब आज देख ही रहे हैं कि पिछले 2 साल में इसका जो एक्सप्लोजन हुआ है, बच्चे इसका जो लाभ है वो ले रहे हैं, उसका सही लाभ पहुँचे वो हमें देखना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि जो एग्रीकल्चर, हेल्थ, ये सारे सेक्टर्स है, उसमें इनोवेशन की रिक्वायरमेंट है, वेलफेयर की रिक्वायरमेंट है, पब्लिक डिलीवरी की रिक्वायरमेंट है। एक सिंपल सा उदाहरण है, जो इमेज प्रोसेसिंग होता है वो अगर AI आपके लिए करके दे, आपका काफ़ी काम आसान हो जाता है। वो जो ब्लॉकचेन के जरिए आपका वेरिफिकेशन होता है, आपका जो सर्टिफिकेशन होता है, बैंकिंग सेक्टर में उसका जो लाभ है, सारा कुछ इससे जुड़ा हुआ है। तो रिसर्च, इनोवेशन और लाइवलीहुड, सब चीज़ों में AI का अगर पॉजिटिव पावर हम इस्तेमाल कर सकें तो उसका नतीजा हमें 2-3 साल में दिखने को मिलेगा। बिल्कुल। And there have also been key technologies and schemes we are adopting to modernize farming and enhance productivity through AI, and a lot of countries have been using this. जैसा कि आप देखेंगे, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आया है, उसमें बताया गया है कि इंडिया का जो प्रिपेयर्डनेस है AI के लिए वो काफ़ी आगे है, क्योंकि हमारे ये जो पूल ऑफ इंजीनियर्स है, सॉफ्टवेयर टैलेंट है, इसको अगर हम रिट्रेन करें और नए जो कोहॉर्ट ऑफ इंजीनियर्स बनेंगे उनको अगर AI इनोवेशंस की तरफ हम लेके जाएं तो देश को सीधा हम उस लेवल पे है, काफ़ी देशों से हम आगे हैं, और हमारा जो रियलिटी है वो भी डिमांड करती है हमसे कि हम इस पे फोकस करें। गोपाल कृष्णा जी, एक अनाउंसमेंट जो है धन धान्य योजना को लेकर के हुआ है, 100 जिलों को इससे कनेक्ट करने की बात हुई है, और प्रधानमंत्री ने अभी अपने भाषण में ये इशारा किया कि इस योजना के तहत वो क्या करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के जरिए वो जो एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे, माइक्रो इरिगेशन को इस्टेब्लिश करेंगे, वहाँ कैसे ठीक है बाकी जो इस्टेब्लिशमेंट हैं, जो प्रोसेसिंग यूनिट हैं या बाकी चीज़ें हैं वो सब इस्टेब्लिश होंगी।
तो मैं देख ये रहा हूं कि माइक्रो इरिगेशन के चलते दो काम हो रहे हैं। एक तो उससे 3 गुना जो रकबा है, क्षेत्रफल है, वो कवर हुआ है अभी तक, मतलब उसमें बहुत तेजी से अपनाया है लोगों ने। और दूसरा, पानी की खपत कम हुई है। तीसरा, उत्पादन ज़्यादा हुआ है, कई जगह 1.5 गुना और कई जगह 2 गुना। और जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो इनकम भी बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें तो केवल इरिगेशन से हैं। उसके साथ फर्टिलाइजर भी उसी के साथ चला जाता है और बाकी चीज़ें फिर आगे की तरफ चलती हैं उस तरह से। तो ये इस पर कुछ हम समझ सकते हैं। देखिए रामवीर जी, आप ये देखें कि कुछ साल पहले, 5-6 साल पहले नीति आयोग ने 100 जिलों को चिन्हित करा जहां की पॉवर्टी लेवल्स बहुत खराब थे। बिल्कुल, बिल्कुल। उस पर जिससे फोकस्ड एक इंटीग्रेटेड फोकस हो, पूरे इंटर डिपार्टमेंटल, इंटर गवर्नमेंटल सब फोकस करें, जिससे उसको हम बढ़ा सके। और फिर उसके बाद रिपोर्ट्स आई जो हम ट्रैक भी कर रहे थे कि उसका लाभ मिला, बहुत फायदा हुआ। तो इस तरह का आप देखें, एग्रीकल्चर का भी जो ग्रोथ भारत देश में हुआ है वो ग्रीन रेवोल्यूशन से हुआ, लेकिन उसका जो लाभ है वो सीमित रहा कुछ ही राज्यों में। आप चाहे पंजाब बोलें, हरियाणा बोलें, वेस्टर्न यूपी बोलें, कहीं कहीं क्षेत्र महाराष्ट्र, तो कुछ ही एरिया में उसका लाभ रहा। अब हमें जो, अगर हम पल्सेस की बात करते हैं, ऑयल सीड्स की बात करते हैं, कॉटन की बात करते हैं, जहां हम अभी भी इंपोर्ट करते हैं, कॉटन हम एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन क्वालिटी का इशू है। अगर उसको हमें बढ़ाना है, अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना है इन सारी चीजों पर, और पल्सेस प्रोटीन के लिए, ऑयल सीड भी जो हमारे यहाँ जो बहुत सारे मेलन्यूट्रिशन के जो साइंस हैं उसको दूर करने के लिए बहुत जरूरत है, उसकी खपत बहुत बढ़ानी है हमें। तो उसको अगर हमें बढ़ाना है, ये होते हैं ज्यादातर सेमी एरिड जोन्स में जब पानी की कमी है। तो ये जो इशारा अगेन है कि हमें एग्रीकल्चर को बढ़ावा अगर हमें देना है, तो ये हमें बढ़ावा देना है उन जिलों में जहां अभी तक ग्रीन रेवोल्यूशन के चिन्ह नहीं पहुंचे हैं। और साथ ही उसके लिए खरीदार भी तय कर दिया है कि नेफेड उसको खरीदेगा। ठीक है, उस तरह की नोडल एजेंसी भी बना दी गई है। बिल्कुल। और ये इम्प्रिंट है सीधा सीधा। अगर आप देखें, शिवराज जी चौहान है जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश में एक तरीके से रेवोल्यूशन करा है एग्रीकल्चर सेक्टर में। बिल्कुल। तो उनकी सोच भी इस बजट में किसी तरीके से दिख रही है। डॉक्टर सब्यसाची, एक चीज ये भी है कि सरकार ने घोषित किया कि वो 13 करोड़ किसानों में से 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग की ओर ले जाएगी। ये भी उसका अनाउंसमेंट है। उसके लिए बजट भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार करना है। मैं कई बार कहता हूं कि अब वो तो नहीं हो सकता कि एक कोऑपरेटिव फार्मिंग का जो पंडित नेहरू का जो विजन था वो उतना पॉसिबल है। उसके लिए किसानों को बहुत तैयार करने की ज़रूरत है। वैसे जो एफपीओ वगैरह हैं वो उसी तरह का काम कर रहे हैं और उसी दिशा में। लेकिन फर्टिगेशन वगैरह को लेकर तो पूरा गांव जो है, कम से कम इरिगेशन और फर्टिगेशन, इसका एक मॉडर्न मॉडल जो है वो हर गांव में आसानी से खड़ा किया जा सकता है, जिसमें वहाँ का पशुधन है, उससे बनने वाली बायोगैस है, बायोस्लैरी है, और पानी के साथ में माइक्रो इरिगेशन है। वो सब कुल मिला करके वो तो कहीं ना कहीं एक एक किसान अपने यहाँ पर उस तरह का छोटा छोटा एस्टेब्लिशमेंट करे, इसके बजाय शायद पूरे गांव को एक फर्टिगेशन और इरिगेशन के मामले में एक तरह से डेवलप किया जा सकता है। बिल्कुल। और ये एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का जो मसला है वो पार्ट है, लेकिन अब हमारे पास अभी डिजिटल टेक्नोलॉजीज का सहारा है। हम अगर उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें, अवेयरनेस जनरेशन का काम करें, ट्रेनिंग का काम करें ग्रास रूट्स में, तो ये जो सेल्फ सफिशिएंट रूरल इकोनॉमी के जो हम बात करते हैं वो हम कर सकते हैं। ये और इसी की तरफ पिछले कई सालों से फोकस रहा है, और मेरा उम्मीद है कि ये जो ग्रास रूट लेड डेवलपमेंट है इसका भी हमें फायदा मिलेगा। Right, we are keeping you updated on what the budget holds for various sectors, especially for the common citizen. Over the next half an hour, we will bring you all the key details focusing on sectors like agriculture, infrastructure, women welfare, and other crucial aspects of the budget. So stay tuned, don't go anywhere. We'll be back after a short break.